हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं अड्डा 24/7 का एसबीआई क्लर्क का मॉक नंबर 1 अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। इसको रिकॉर्ड भी कर दे रहा हूँ। आपको जब टाइम मिले तो देख लीजिएगा। मैं और अगर आपने इस मॉक को ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया है, तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए मॉक स्टार्ट करते हैं। The global ocean hit an energy records temperature of 21.1 degrees Celsius in early April, 0.1% higher than the last records in 2016, although the striking figures in lines with the ocean warnings anticipated from the climate change. What is remarkable is its occurrence ahead of rather than during the El Nino climate event that is expected to bring warmer weather mm, to the eastern Pacific regions later this year. That means warmer than the average ocean temperatures are likely to persist or even intensify, bringing with them more extreme weather and marine heat waves, which spells problems for the marine life from the corals to whales. The El Nino Southern Oscillation is a natural cyclical climate pattern. During El Nino phase, winds over the Pacific and weakened or reserved, allowing warm waters to slosh easterns in the Pacific. El Nino tends to coincide with warmer years both in the oceans and on lands. The previous records of 21 degrees Celsius, for example, occurred during a very strong El Nino events. ENSO is currently in a neutral phase, coming out at the rare extended 3 years periods of El Nino. El Nino, the opposite phase of El Nino, but El Nino is expected to kick in this year. According to the World Meteorological Organization, there is 60% of chances of its developing between May and July, and an up to 80% chances it happening by the October. And releasing oceanographers at the Southwest Fisheries Science Center of the U.S. National Oceanographic and Atmospheric Administrations in Las Jolla, California, expect to see usually warm weather in the Pacific of the west coast of the United States during the summers and autumn. Large heat waves of the U.S. Pacific coast lends to compress the habitats and zones for many species into the narrow strips along the coast, brings the whales closer to the shores as they chase foods. When it increases strikes and fishing gears, when warm waters but up against the shores, he adds they host harmful global blooms in the climate curves. Mussel fishes, but the moment of leaching said there is usually a strong feeling of cold water occurring along the US west coast, which could protect against some warming this year. ठीक है. What is the significance of the global occurrence temperature reaching 21.1% in April? It indicates a new record in the ocean warm to the climate. यही तो था. 21.1 डिग्री सेल्सियस. 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 21.1 डिग्री सेल्सियस
temperatures higher than the records in Madhya, although the striking figure with the ocean warming anticipated. What is the relationship between El Nino and oceans and the land temperature? El Nino leads to cooler ocean temperature and warmer land temperature. नहीं, El Nino coincides with warmer ocean and warmer land temperature. Yes. How might warm waters along the US Pacific coast affect marine species? It will lead the wider habitat. It will reduce the risk of US Pacific coast affect the marine mm, US Pacific of the coast. United States during the summers of autumn, large US Pacific coast tends to compress the habitat zone for many species into a narrow strip. It will reduce the risk of ships strikes and interference. It will decrease the occurrence. It will require It will decrease the occurrence of illegal fishing. नहीं, it will result in increase in ship strikes and enlargement. सही. What is the role of upwelling the cold water along the US west coast? छोड़ देना. Which of the following is synonym of compress? Compress मतलब हो जाएगा prejudice तो नहीं होगा, abate नहीं होगा, deprivation घटना. Yes. Which of the following word is antonyms of coincide? Coincide हो, differ करना. ठीक है. The students were eager to learn new things, so they bombarded their teachers with the question. ठीक है. The writer's eloquent words evoked a range of emotions in their readers from joy to sadness. Emotions ही तो होगा, क्योंकि joy से sadness तो emotion. The team celebrated their hard-earned victory with a remarkable display to teamwork. With a remarkable, disappointing नहीं, chaotic नहीं, individualistic नहीं, teamwork में individualistic नहीं. The young artist carefully selected a palette of colors to create the vibrant and captive painting. Mismatched तो नहीं होगा, डल भी नहीं होगा. मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक नहीं, हारमोनियस होना चाहिए. Young artist carefully selected a harmonious palette. The surge of Christianity in China has baffled the scholarly community for several decades. Christianity has been grown by the leaps and bounds. Grown by नहीं होगा, growing by ना, growing by होना चाहिए. Has been growing by leaps and bounds. कौन सा part है? C. The teacher emphasized on. The teacher emphasized on. Emphasized में ये नहीं होना चाहिए. Emphasize the importance of regular attendance to the students. The new employee was provided a
throughout training on company policies and procedures before starting his job. स्टार्टिंग हो सकता है, बिफोर स्टार्ट हो सकता है. The team has been participating hard for the upcoming matches. Participating hard. Oh, participating नहीं, practicing. Sorry. The team has been practice hard होगा शायद. Practice hard for the upcoming match and their confidence. Confidence नहीं, अब confident होना चाहिए. She gracefully dance through the stage. She gracefully dance through the grace नहीं होगा. ये भक्त तो नहीं होने. Gracefully dance across the stage. Gracefully dance across the stage. सही. इसका होगा. Foods like beverage, fruit, grains, dairy and nuts are high in nutrients and more likely to keep you satisfied longer than processed packaged foods. ठीक है. When we eat, the body turns food into energy that is used to regular bodily functions and physically actives. ठीक है, ये फर्स्ट हो सकता है. Processed food are high in sugars and fat, low in fibers, which makes them easily. ये नहीं होगा. The energy collected that is not the कौन सा एनर्जी, ये भी नहीं होगा. ये भी नहीं होगा. मतलब फर्स्ट हो जाएगा बी. ठीक है, बी के बाद चलो फर्स्ट का फर्स्ट बी हो गया. डेड पर्टस एनर्जी है. एनर्जी के बाद द एनर्जी कलेक्टेड दैट इज नॉट यूज टू गेट स्टोर्ड इन द फ्यूचर एज फैट. डी का सेकेंड होना चाहिए. फोर्थ क्या हो सकता है. डी. इसको फिलहाल छोड़ दे रहे हो, आगे बढ़. इन इन ऑर्डर टू in order to ease his pain, Kelly gives a body a cold compress. मतलब हो जाएगा बी ए सी है ये रहा. The client was unhappy when he learned the software company was going to reset his project delivery date. तो इसमें तो कुछ लग नहीं रहा है कि चेंज होना चाहिए. The client was unhappy when he learned the software company was going to reset his project delivery date. Yeah, no. Darkly the traffic stop. नहीं, डायरेक्टली नहीं होगा. During the traffic stop, the driver was barely visible through the dark tinted windows. ये तो ड्यूरिंग फर्स्ट मतलब सी फर्स्ट पे. barely visible यही होगा. In order to assemble the tickets नहीं, in order to purchase the ticket. ठीक है, बी फर्स्ट पे आएगा.
बी फर्स्ट पे आएगा तो यही एक ऑप्शन हो जाएगा। बिकॉज मैरी इज लेड बैक यू यू विल you will rarely see her lose control on her temper। मतलब ए सी बी हो सकता है। ए सी बी तो है ना, ये रहा है। अब वापस से पैसेज कर लेते हैं। What is the role of wailing the cold water along the US west coast? Of wailing the water US west coast. It is that sodium burning region contribute the formation of harmful algal blooms along the west US west coast. Oceanography administration Lozilla, California expect to see usually warm waste in the Pacific. The United States during the summer and autumn large heat waves and US Pacific coast tends to compress the zone from many species into narrow strips along the coast, leading that they were brings the vales closer to facings when warm water but against the shore. Muscles, but the moment leasing say there is usually a storm of wailing and cold water occurring. A storm of wailing of cold water occur along the US west coast, which could protect against some burning effects of this air side. How does the occurrence of El Nino impact the habitat zone of maritime species? El Nino habitat zone of El Nino tends to cause Burma occurs El Nino event natural phase out standard 3 year period only. According to the World Meteorological 60%. El Nino climate change that expected to bring warmer weather। इसको छोड़ के ये देखो क्या। While the prisoners were the different races, they all joined the solidarity to protect their dirty mouth। THER नहीं होगा, their THEIR, ठीक है। join joined join for solidarity, join in solidarity to protest their joined in joyful solidarity, joint in solidarity यही हो जाएगा 19। Scientists diligent conducted experiment। ठीक है, scientists diligent conducted experiments
analyzed data and collaborated to unravel the mysteries of the universe. Mysteries of the universe नहीं scientist experiments analyze data experiments analyze data B इसका होना चाहिए. The new employee was provided authority on company policies and procedures before starting. Before starting या start their job D होना चाहिए इसका. एक्सप्लोर कर इसको मार्क फॉर रिव्यू लगाते रहे पर what is the ratio of boys in A to the two girls in C and D together. Girls in C and D हो जाएगा. गर्ल्स कौन है? नंबर ऑफ गर्ल्स येलो वाला 10 दोबारा तो 14. गर्ल्स इन सी और डी 14 और 20 34 हो गया. अब बॉयज फाइंड द रेस. बॉयज इन ए ओ ये परसेंटेज ऑफ बॉय दिया भाई. ये कैसे 60 62 64 हो गया. 64 और 36 का वैल्यू है 54 तो हो जाएगा 54 भागा 36 इंटू 64. 18 36 18 54 18 दूनी 36 ये हो जाएगा 32 32 ये 96 टू 34 96 का आधा 48 48 का आधा 70 48 17 ये and the average number of total students in all classes. एवरेज नंबर भाई फिर तो भी बहुत टाइम लगेगा इसमें पर हमें इन क्लास एफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज इन क्लास एफ. ठीक है 3:4 है. ठीक है एंड बॉय इन एफ इज 20% मोर देन गर्ल्स इन डी. गर्ल्स डी में 20 है 20 का 20% ज़्यादा मतलब 4 24 हो गया. 24 एफ में 3 का वैल्यू 24 और 4 का 3 8 8 चौके 32. Find the difference between the girls and boys is what percent of the total. इसको रहने दो. 161 161 170 188 124 295 440 728. ठीक है यहाँ पे हो जाएगा 61 9 70 70 और 10 80 8 88 18 मतलब 9 18 27 है क्या नहीं 14 में से हट जाएगा 6 मतलब 36 9 18 36 तो यहाँ 72 होना चाहिए. 72 4 2 6 5 तो नहीं होगा मतलब 95 ही होना चाहिए. 24 70 36. ठीक है 106 55 160 81. ठीक है तो इसका हो जाएगा क्या 24 24 का 48 24 दिया 72 इंटू 3 -2. ठीक है इसका आधा लगभग हो जा रहा था. ये गुना के बाद भागा मतलब भागा 2 35 प्लस 1. ठीक है तो यहाँ पे फिर गुना होना चाहिए 36 35 35 एक 35 दिया 30 दिया 90 छतिया 18 18. ठीक है 106. इसका फिर भागा अगर 2 देते हैं तो हो जाएगा 53 53 प्लस 1 होना चाहिए 54 54 होना चाहिए 55 है यही है 156 237 301 349 386 411
427, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा 1, 3 में से 23, 15, 8, 23, 8 हो गया 81, 11 में से 7 जाएगा 4 हो गया 29 में से 23, 6, 29, 9 9 81, 28, 64, 67, 49, यही गलत हो जाएगा। 349, 15, 14, 26, 75, 296, ठीक है। 14, 85, 88, 44, ठीक है। 14 इंटू 1 प्लस -1 मतलब 15 एकम 15 -1 14, 14 28 -2, 26 का 52, 26 78 -3 75, 75 75 डेढ़ 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 300, 300 -4 296, सही है। ये हो जाएगा 5 मतलब 29 60, 29 60 क्या था, 29 60 मतलब 80, 1480, 1480 -5 तो 1475 होना चाहिए था, लेकिन 1450 ही दिया है, यही गलत है। 238, 245, 256, 269, 286, 305, 327, 305, 327, ठीक है। 38, 2, 40, 5, 45, 7 हो गया, 45, 10, 55, 1, 56, 11 हो गया, 56, 3, 59, 10, 69, 13 हो गया, 13, 69, 69 और 7, 76, 10, 86, 17 हो गया। यहाँ पे 19 हो गया, तो यहाँ पे 21 होना चाहिए था, 21 नहीं तो 23 होना चाहिए था। तो 21 23 कुछ 327 ही फिर आंसर। 9, 18 भागा 9, 180 भागा 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, दो पर 21 हो गया। नहीं, 21 कैसे होगा, 9 दूनी 18, 20 हो गया। 20 और प्लस 160 भागा 32, तो 32 बचे 160, 5 हो गया। और फिर हो जाएगा 200 भागा 4, 200 भागा 4 हो जाएगा 50, तो 50 भी 70, 5, 75, 75 आंसर है। ये हो जाएगा 16 16, 256, 8 8 64, 56 और 64, 64 और 6 70, 320, 320 हो गया, 320, 300 मतलब 32 छक्का, 32 को अगर 6 बार गुना करो तो हो जाएगा 192, 192 हो गया। 192 को 12 से भागा देंगे तो 1, 12 छक 72, 16 हो गया, तो अंडर रूट है 16 16 256। ये हो जाएगा 484, 22 इंटू 12, 22 नहीं है कि 220, 22 दूनी 44, 44 और 20 हो जाएगा 264, 264 हो गया भागा 24, 24 एक बार में 24, फिर तो बचेगा 11, 11 11 121। अरे ये कैसे छूट गया भाई। ये 40% ऑफ 725, 725 ना, 40% ऑफ 725 अगर करते हैं तो हो जाएगा कितना, 72 72 140 मतलब 145, 145 दूनी 290, 290 हो जाएगा, 290 बटे 29/100 इंटू एक्स इक्वल टू 40 इंटू एक्स अगर करते हैं तो, अगर यहाँ से 5 अगर रखते हैं, 4 अगर रहते हैं तो 4 4 यहाँ से नहीं कटेगा, 5 अगर करते हैं तो 4 5 20, यहाँ पे 200 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे होगा तो 20 हो जाएगा, 29 देंगे 200, ये यहाँ पे 200 आ जा रहा है।
तो मतलब 5 ही आंसर होना चाहिए। ये हो जाएगा 225। 225 नहीं, इसको ऐसे कर दो। 64 है, 88 64 मतलब 80 हो गया। 80 को 160 तो 2 हो जाएगा। 2, फिर 2 को 225 से 450, 450 भागा 5 मतलब 9। ये हो जाएगा 4 3 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो गया। और फिर 8 और 9, 9 माइनस हो जाएगा तो 9 कट गया, 8 बचा मतलब 800। ठीक है। फिर 2 और 7, 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1 मतलब 10 हो गया। 5 और 5 10 में से 6 जाएगा 4 हो गया मतलब 2 8 1 4 मतलब 28 14। 28 14 को 42 से भागा देंगे तो 6 बार में 42। फिर 6 से ज़्यादा मतलब 7 बार में 67। 5/2 गला 48, 12 चौक 48। 4 बार में 4 पचे 20। ठीक है। फिर हो जाएगा 15। 15 एका 15, 15 छक्का 90, 16, 16 का 11 हो जाएगा 176। 16 11 176, 20 196 हो गया। 196 में से अगर 44 माइनस कर देंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, 19 में से 4 जाएगा 15, 152। ये हो जाएगा 36 18 180। 180 माइनस हो जाएगा कितना, 40 8 36 8 54 18 72, 72 भागा 24, 24 का 48, 24 72, 177। 177 का 2 7 14 के 4 बाकी 17 34 1 35 354 आंसर आ रहा है। 27 ये हो जाएगा। 3 3 9 9 3 27 मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 to the power 6 इंटू हो जाएगा 3 3 9 मतलब 3 to the power 2 माइनस में जाएगा। 3 3 9 9 3 27 27 81। 3 to the power 4, 4 6 माइनस 4 2 2 4 4 हो गया। 4 और 2 6 6 रहेगा। 6 माइनस 2 होगा तो 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 109 माइनस का ये प्लस का मतलब प्लस का 41 यहाँ पे होगा। 276 प्लस 41, 6 1 7 7 4 11 2 1 3 317। 317 प्लस 26, 7 6 13 का 3 बाकी 1 2 1 3 1 4 343। 343 होता है 7 का 343। ठीक है। लिखा है देयर आर 3 कंपनी ए बी सी have male and female working employee. Total employee in A is 3 times the total employee of C. A का टोटल एम्प्लॉय 3 है, इसका 1 है। ठीक है। द मेल एंड फीमेल वर्किंग इन सी इज इक्वल। मेल एंड फीमेल इन सी दोनों इक्वल 1:1 में। ठीक है। द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन ए इज 5:3। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। ठीक। डिफरेंस बिटवीन मेल एम्प्लॉय इन ए एंड सी। डिफरेंस बिटवीन मेल एम्प्लॉय इन ए और सी हो जाएगा 110। मतलब 2 का वैल्यू 110 है तो 1 का वैल्यू 55। तो 55 दिया हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द मेल एम्प्लॉय इन ए एंड सी इज 110। मेल का कहाँ से आएगा, वो तो टोटल का था।
110 विच इज इक्वल टू द एवरेज फीमेल एम्प्लॉय इन ऑल थ्री कंपनी। 110 है एवरेज 3 का, 110 का मतलब टोटल फीमेल है 330, ठीक है। टोटल एम्प्लॉय इन बी इज 100 मोर देन द ए एंड सी टुगेदर। 100 मोर देन द ए और सी टुगेदर। ए और सी का जितना है उससे 100 ज़्यादा है बी में। ठीक है, फोन है सोल्व। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास इन ऑल क्लास। ये हो जाएगा कितना, 64%, तो 36% का वैल्यू है 54 इंटू 100 कर दो, 18 दूनी 54 भागा 36 इंटू 100 कर दो, 18 दूनी 36, 18 दिया 54, 3 50 दिया, मतलब 150 है। ए में 150 है, बी में हो जाएगा कितना, ये 20 है, यहाँ है 80, 20 भागा 20 तो ये मतलब बी में 100 है। सी में है कितना, 72, 8 80 भी 100, 28 का वैल्यू है। ये हो जाएगा कितना, 28, 14 भागा 28 इंटू 100 हो जाएगा, 14 28 2, तो ये हो जाएगा 50। सी में 50 है, डी में हो जाएगा कितना, ये 60 है, 40 का वैल्यू 20 है, 100 का वैल्यू इसका भी 50 हो जाएगा। ई में हो जाएगा कितना, ये 30, 30 34 36 है, 64, 12 14 16, 16 भागा 64 इंटू 16 चका 64, 4 25 आंसर है। मतलब हो जाएगा 251, 300, 325, 325 भागा 5 5 छक्का 30, 5 5 25 65 आंसर है क्या। पचहत्तर है क्या, 2 2 4 1 5, सही तो है। 101, 200, 201, 300, 300, 375 है, सॉरी 375, तो हो जाएगा 7 5 35, 5 5 25 सही है, 75 ही आंसर है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द गर्ल्स एंड बॉयज is what percent of the total students in all the given blocks. In class D, 10% of total students are absent. In class D, D में टोटल है 50, उसका 10%, 5 absent है, absent, and 60% out of them are girls. 45 का 60, 3 या 5 9 9 27 गर्ल्स है। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज प्रेजेंट इन 27 3 30 10 40 45 18 हो जाएगा, 45 माइनस 27, 9 से 7 जाएगा 8 हो जाएगा। इन क्लास डी है, डी में टोटल 50 बच्चे हैं, ठीक है। 10% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर
तो हो जाएगा 45। देन 60% आउट ऑफ देम आर गर्ल्स। 45 का 60%, 27, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज प्रेजेंट इन द क्लास। 27, 3 30, 10 40, 18 तो आ रहा है। 18 है ही नहीं, ऑप्शन ये गलत है। 28 नहीं होगा, 18 आंसर इसका आना चाहिए था। मारूं या हटा दूं? हटा दे रहा हूँ। ओह सेट। 10% sitting in two parallel of 5 in each. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। JKLMN सीट फेसिंग साउथ, JKLMN साउथ। बाकी है ABCDE नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है। 1% सीट्स बिटवीन A एंड द पर्सन हु फेसेज M। ए और एम के बीच में ए एंड एम डू नॉट सिट एट द एंड। ए और एम इन पे नहीं है, तो ए को अगर यहाँ पे करो, ए पे यहाँ, तो एम यहाँ पे हो जाएगा। ए को अगर यहाँ पे, तो एम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। के सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेज ई। ई को जो फेस कर रहा है उसके सेकेंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड टू द लेफ्ट कौन है? ए डज नॉट फेसेज के। ए के सामने ए नहीं होगा, ठीक है। ई डजंट सिट एट एंड, ई एंड पे भी नहीं है, नहीं है, ठीक है। वन वन पर्सन सीट बिटवीन एन एंड जे। एन एंड जे। एन सीट टू द लेफ्ट ऑफ एम। एन सीट टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम। टू पर्सन सीट बिटवीन सी एंड बी। सी और बी के बीच में टू पर्सन। सी एंड बी। ई एंड सी डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। ई और सी, ई सी एक साथ नहीं। तो सी अगर यहाँ पे कर दो, दो छोड़ के बी हो जाएगा, दो छोड़ के बी हो गया। और ई एंड पे नहीं है, तो ई को यहाँ कर दो, ठीक है। वैसे इसमें सी, सी दो छोड़ के बी हो गया। बी के अगर ई एंड पे नहीं है, तो ई यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो बचा कौन? ABCE। तो डी यहाँ पे, इसमें डी यहाँ पे। ई के सामने जो बैठा है उसका सेकंड लेफ्ट में के है। ई जो बैठा है उसका सेकंड लेफ्ट में के है, सही है। एन एक छोड़ के जे है। एन एक छोड़ के जे है, एम के लेफ्ट में एन एक छोड़ के जे है, एम के लेफ्ट में एन है, तो सही तो हो गया। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ ई एंड पे नहीं है, ई एंड पे नहीं है। एन एक छोड़ के जे है, ये भी है, ठीक है, ये सही है। के सामने ये नहीं है। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ जे। जे के राइट में नन है। Who among the following person sits adjacent to the person who faces L? L को जो फेस कर रहा है, L को जो फेस कर रहा है उसका एडजेसेंट में E और C, both E and C. What is the position of E with respect to B? Position of E with respect to B, B के immediate right में, immediately right.
हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए? डी एंड ए के बीच में 2 पर्सन है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू के? पोजीशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू के, के फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट में। Only a few speakers are laptop. Only a few speakers are laptop. Some mobiles are laptop. No laptop is charger. No laptop is charger. ठीक है. Some charger is a speaker. Can't say no charger is speaker. Either हो जाएगा फिर इसका. Oh sorry. Some charger is a speaker. No speaker is charger. Either ही हो जाएगा इसका आंसर. Some only a few A is B. Some A is B. All B is C. Some C is not A. Some C is not A. All A can be C. All A can be C. Can't say plus possibility. Plus possibility सही है. Some B is not A. Some B is not A. Can't से हो जाएगा. हो भी सकता है नहीं भी. Some B is not A. Only one follow. Only a few physics or biology. Some physics is biology. No biology is chemistry. All chemistry are history. सही है. All biology can be history. All biology can be history. Can't से plus possibility सही हो जाएगा. Some chemistry can be physics. Some chemistry can be physics. Can't से plus possibility सही. बहुत हो जाएगा इसका आंसर. ये सबको मार्क फॉर रिव्यू लगा दे रहे. How many such pairs of INOCULATE? IJKLMNOP क्यों नहीं? NONOPQRST टी भी हो जाएगा. ठीक है. CDELMNOEFGHIT 4 हो जा रहा है इसका. 8 6 5 4 2 3 4 1 3 1. If the given number, if 2 is subtracted from the first half of the digit, फर्स्ट हाफ में से 2 माइनस करना ना. 6 4 3 2 0 and 1 is added to the second half. 4 5 2 4 9. Then find the sum of third digit from the left and fifth digit from the right. 2 2 4 1 5 4 3 7 आंसर हो जाएगा. How many such numbers are there in the above series which is immediately preceded by consonant number? How many numbers precede consonant number symbol? Consonant number symbol. नंबर की जस्ट बाद सिंबल जहाँ पे होगा. नंबर के जस्ट बाद कॉन्सोनेंट नंबर सिंबल एक हो गया. 1 ही हो जाएगा. Which element is exactly in the middle of fourth element from the left in and 20th element from the right in? तो 8 तो 10 तो 12 तो 14 तो 16 तो 18 तो 20. फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. 2 2 4 मिडल में ना. 2 2 4 2 6 2 8 9 2 2 4 5 स्टार हो जाएगा.
If all the numbers are removed, then which element is added to the right of 10th element from the right end? सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड हो जाएगा फिर तो बाई व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर गिवन इन द सीरीज 2 5 7 8 15 15 6 21 21 1 22 4 26 26 3 29 29 31 8 38 38 42 आंसर है certain number of persons sitting in a straight line facing north 6 persons sit between P and Q के बीच में 6 पर्सन ठीक है P and Q 1 2 3 4 5 6 Q ठीक है R sits fifth from the right end R sits fifth from the right end 1 2 3 4 5 R sits fifth from the right end the number of persons sits to the left of P के लेफ्ट में is one less than the number of persons sit to the right of R के राइट में 4 है तो इधर 3 हो जाएगा P के लेफ्ट में 1 2 3 ठीक है M sits second to the left of O who is sits to the left of P who is sits to the left of P ठीक है 2 persons sits between P and B 2 persons sits between P and B के बीच में 2 है तो यहाँ हो गया as many persons sits between P and as between P and BP and BT. N sits at the position to the right of R. N sits position right of R. Right of R. N यहाँ पे हो गया तो ये यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे P यहाँ पे है तो इतना Q यहाँ पे हो ही गया T यहाँ पे हो जाएगा Who among the following sits 7 to the left of Q? Q के 7 left first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. P हो जाएगा none of these. How many persons are sitting in the row? Sitting in the row 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13. How many non persons will sit between V and Q? V and Q के बीच में नॉन पर्सन 2 ही है अरे नॉन पर्सन 2 है The number of persons sits to the left of N. Left of N. N is 3 more than the number of persons. 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 2 4 2 6 मतलब भी हो जाएगा फिर T greater than Z. T greater than Z गलत है Z greater equal to M. Z greater equal to M नहीं है नीदर हो जाएगा W greater than E. W greater than कनेक्ट ही नहीं है A greater equal to F. A greater equal to तो नहीं होगा A greater equal to F. W greater than Z. Z greater than E. सही है only one follow. 7% PQRST. You is living in a story building but not in 7 तक है ना 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 ठीक 1% lives between R and S के बीच में 1% ठीक है नॉट मोर देन 2% lives below R से बिलो 2% से ज़्यादा नहीं होगा तो R यही 3 पे होगा R एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ ठीक है नॉट मोर देन 2% लिव्स बिटवीन एस एंड बी के बीच में भी 2% है बी ठीक है आर एंड बी डू नॉट लिव्स एडजेसेंट फ्लोर आर के बगल में बी नहीं है ठीक है 1% लिव्स बिटवीन टी एंड क्यू के बीच में 1% है ठीक है क्यू एंड एस आर नॉट लिव्स एडजेसेंट प्लेन क्यू के बगल में
यस नहीं होगा, ठीक है। क्यू डज नॉट लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर, क्यू यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। ये लिव्स बिलो एस, एस के बिलो ए है, तो एस के बिलो ए है तो आर को यहाँ, ये यहाँ, एस यहाँ पे अगर होता है तो एस एक छोड़ के आर था, आर यहाँ पे आ गया, एस दो छोड़ के बी भी है, एक दो छोड़ के बी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू हो गया ना, टी और क्यू यहाँ पे हो सकते हैं, हाँ टी क्यू यहाँ पे हो गया, ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स जस्ट एबव आर, यहाँ पे आर एक छोड़ के एस था ना, टी एक छोड़ के क्यू भी था, टी यहाँ पे है तो क्यू यहाँ पे हो ही गया, ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स जस्ट एबव आर, आर से जस्ट एबव ए है। हाउ मेनी पर्सन लिव्स बिलो पी, पी से लिव्स बिलो है, तीन है, एक दो तीन। Who among the following person lives on fifth floor, फिफ्थ फ्लोर पे है Q। How many person lives between T and S, T and S के बीच में एक दो तीन, T S के बीच में तीन ही है। Which of the following statement is true? No one lives below A, गलत है। One person lives between T and Q, ठीक है। Two persons live between A and P, A and P के बीच में two person, ये भी गलत है, मतलब only second is true। मीनिंगफुल वर्ड ना, चार पाँच आठ, चार में है आई एस, पाँच में है, छः सात आठ में टी है, नौ दस ग्यारह ई है। इसका हो जाएगा एस आई टी, टाइस भी होगा टी आई ई एस। मोर देन वन वर्ड, नो मीनिंगफुल है। इफ मोर देन वन मीनिंगफुल है, जेड इज आंसर, ठीक है। 8 persons sitting around a circular table but not necessarily in the same order, कहाँ कौन साइड में फेस कर रहा है, ऑल आर सेंटर, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हाँ ठीक है, और टुवर्ड द सेंटर। वन पर्सन सीट बिटवीन सी एंड बी, सी एंड बी, ठीक है। टू पर्सन सीट बिटवीन बी एंड एच, बी एंड एच, बी एंड एच, एच एंड सी इज नॉट एडजेसेंट, बी एंड एच यहाँ पे हो जाएगा, बी एंड एच यहाँ पे हो गया। डी इज इमीडिएटली राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएटली राइट में डी है। ए नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू बी नॉर सी, ए बी और सी के बगल में नहीं है, तो ए के इमीडिएट राइट में डी, ए के इमीडिएट राइट में बी, तो यहीं पे हो जाएगा, राइट में भी नहीं, ए के इमीडिएट राइट, ए के इमीडिएट राइट में डी है, ए के इमीडिएट राइट में डी, यहाँ पे हो गया। डी एंड सी डू नॉट सिट्स एडजेसेंट, डी और सी एडजेसेंट नहीं है, डी के बगल में सी नहीं है, डी का ये नहीं हो जाएगा। वन पर्सन सीट बिटवीन ई एंड जी, ई एंड जी, जी एंड ए, जी नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू बी, एच के बगल में जी नहीं है, बी के बगल में जी नहीं है, जी यहाँ पे हो जाएगा, ई यहाँ पे हो गया। वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसेज ई, ई के सामने एच फेस कर रहा है। What is the position of F with respect to H? Position of F with respect to H, H के immediate left में। How many persons sit between G and B? G और B when counted from the left of G, दो पर्सन। What is the position of D with respect to C? Position of D with respect to C, first second third to the left, third to the left, third to the left, सही है।
Who among the following persons sits second to the left of F? F के second to the left में, first second to the left में C हो रहा है. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. 30 सेकंड में तो बनने से रहा. क्या ही कर सकते हैं. सबमिट ही कर दे रहा हूँ. दोस्तों मॉक सबमिट हो गया. आइए स्कोर देख लेते हैं. इस मॉक में मैंने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे. इस क्वेश्चन में मैंने टोटल 73 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 70 क्वेश्चन करेक्ट हुए, 3 क्वेश्चन ही रॉन्ग हुए. एक्यूरेसी बहुत अच्छा था. ऐसा ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सारे एग्ज़ाम सारे मॉक में रहे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो. परसेंटाइल 96 का है. एक्यूरेसी 95.90 का है. अटेम्प्ट 73 है. मेरा स्कोर बना 69.25. ओवरऑल रैंक 399. अगर सेक्शन वाइज देखें तो इंग्लिश में मैंने टोटल 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 21 क्वेश्चन करेक्ट हुए, 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए. और इंग्लिश में मेरा स्कोर बना 20.25. अब तक का मेरा हाईएस्ट स्कोर है इंग्लिश का अड्डा के मौके में. इतना नंबर यूजुअली मुझे आते नहीं है इंग्लिश सेक्शन में खास करके. क्वांट्स कोई खास अच्छा नहीं हुआ था. क्वांट्स में मैंने 18 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे, और जिसमें से सारे के सारे 18 क्वेश्चन सही हुए. और क्वांट्स में मेरा स्कोर बना ओनली 18. वहीं रीजनिंग सेक्शन में मैंने टोटल 31 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से सारे 31 क्वेश्चन सही हुए. ये भी 100% एक्यूरेसी. और 4 क्वेश्चन छूट गए थे. दो क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस के और 2 क्वेश्चन आपके ब्लड एंड रिलेशंस के. उसके अलावा मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए थे. अगर ओवरऑल स्कोर 69 पॉइंट समथिंग था ना. ओवरऑल स्कोर 69.25. रैंक तो 399 है. अगर मॉक की लेवल की बात करूँ तो मॉक का लेवल मुझे इजी लगा. इजी था हाँ, लेकिन क्वांट का सेक्शन टफ था, ये मैं मानता हूँ. क्वांट का सेक्शन टफ था, थोड़ा कैलकुलेटिव था. टफ भी नहीं था, मतलब वो थोड़ा कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लग रहे थे. और रीजनिंग तो बहुत ही इजी था. तो दोस्तों अगर आप ये मॉक अटेम्प्ट किए हैं तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा. और अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहला मॉक तो फ्री ही होता है. तो आप इस मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हैं. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. मिलते हैं किसी और वीडियो में.